دعوت خطاب دینا چاہوں گا صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب ملک آصف احمد نسوانہ صاحب کو کہ وہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملک آصف نسوانہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جناب مبشر رحمان صاحب صدر لاہور بار ایسوسی ایشن اور ان کی پوری کیبنٹ، ہم آپ کو یہاں ہماری دعوت پر اس جوائنٹ سیشن میں آمد کے لیے آپ کے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا اس طرح کے جوائنٹ سیشنز ہوتے رہیں گے. اور انتہائی معزز ممبران بار، ہمارا جو پہلا سیشن ہوا تھا اس کیبنٹ کا اس دن غالباً پہلا رمضان تھا، اور آج جب ہمارا یہ جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے تو رمضان کا آلموسٹ جو ہے وہ ایک الوداع ہونے کو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اور ہماری کوششیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آج کے ہاؤس کے جو دو ایجنڈا تھے اس میں سب سے پہلے جس طرح سب بھائیوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، میں مختصر الفاظ میں اپنے ان دو بھائیوں کو جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جناب ضمیر احمد جھیڈو صاحب اور جناب وقاص کالو صاحب، میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ظلم، جبر اور بربریت کے دور میں جب تمام ہمارے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں، آپ نے اپنے حق کے لیے ایک مافیا کے سامنے اور ظالم کے سامنے آپ ڈٹ گئے، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا بھی ایک جہاد ہے، اور آپ نے وہ جہاد کیا. اور اس کے بعد میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مبشر رحمان کی قیادت میں پوری لاہور بار کی کیبنٹ، اور میری غیر موجودگی میں ہمارے سیکرٹری فاروق الیاس چیمہ صاحب اور باقی جو ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے، ان کی قیادت میں آپ نے جس طرح پرامن طریقے سے بر وقت ایکشن لیتے ہوئے ایک اتنے بڑی جو ایک سازش تھی، جو ایک قبضہ کیا جا رہا تھا، آپ نے بہت احسن طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اپنے تمام مطالبات منوائے، اور ہمارے بھائی بھی بہت احسن طریقے سے باعزت طریقے سے اس سارے معاملات میں وہ بری ہوئے، اور وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج اس دور میں ہمارے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ یا تو ناجائز قبضے کرنے میں شامل ہیں، اس میں مشغول ہیں، اور یا پھر وہ جائز قبضوں کو ختم کرنے میں مشغول ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور ایک طرف ہمارے دو صوبے لٹرلی جل رہے ہیں جہاں اس لیول کی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آج ہمارے یہ جو ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے عوام کا تحفظ کرنا ہے، عوام کی بلونگنگز اور ان کی پراپرٹی کا تحفظ کرنا ہے، وہ اس طرح کی میل پریکٹس اور اس طرح کی حرکتوں میں مصروف ہیں. اور اس سے بڑھ کر جب پچھلے دنوں میں یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں جب ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا کئی گھنٹوں جاری رہا اور ان کیمرہ اجلاس تھا، اس کے بعد جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو سوشل میڈیا پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کے خلاف محاذ کرنا ہے، شروع کرنا ہے. اور انہوں نے کیا. آج ہمارے روز میں آپ کمیٹی روم میں ہمارے ساتھ بیٹھے، ہر روز 3-4 ایسے ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں جن کو معصوم بچوں کو کسی ایک پوسٹ پتہ نہیں انہوں نے لگائی ہے یا نہیں لگائی، اس کی آڑ میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا ان کے ویئر باؤٹس کا پتہ نہیں ہے. اور جب تک ہماری ایجنسیز اسی طرح کے کاموں میں مشغول رہیں گی، یہ دہشت گردی کس طرح کنٹرول ہوگی؟ ہم اس ہاؤس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس ملک پر رحم کریں، اور جو آپ کا کام ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں، اور جو ہمارے دو صوبے جل رہے ہیں وہ دہشت گردی روکنے اس کو ٹاپ پرائورٹی پر رکھیں، اور اپنے معصوم شہریوں سے جو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اس سے آپ باز آ جائیں. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ایجنڈا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے جو منفی اثرات ہماری
आला अदलिया पर और हमारे इंसाफ की फराहमी में जो आए दिन हमें इस तरह के वाक़यात का इल्म होता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह जो केस मैनेजमेंट में और अदालतों की कार्रवाई में जो इसके असरात हो रहे हैं, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात हो रहे हैं, जिस तरह एक जज के पास एक केस पेंडिंग केस को जिसमें समाअत हो रही है, जो कि बहुत आगे नतीजा उसके आने में फैसला होने को है, और किस तरह उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, किस तरह उस जज की मर्जी के बगैर उस केस को जो है उसकी लिस्ट कैंसिल कर दी जाती है, किस तरह दूसरी कोर्ट से जजेस को पिक एंड चूज करके अपने मर्जी के टॉप जजेस को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाकर पूरी तरह कोर्ट की पैकिंग करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही अलमिया है कि ये सब 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सारा ये खिलवाड़ हो रहा है। हमारे इस निज़ाम अदल और इंसाफ की फराहमी में हमारा जो टूटा फूटा, ऑलरेडी इस 26वीं आईनी तरमीम से पहले हम 130 नंबर के बाद थे, और इसके बाद आप अंदाजा करें कि क्या हाल होगा हमारा जब हम दुनिया में अपने आप को कंपैरिजन करेंगे हमारे निज़ाम अदल को। लिहाजा हम सब दोस्तों ने बहुत अच्छी तजावीज़ दी, और आज के इस जॉइंट सेशन में हम ये रिजॉल्व करते हैं कि इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि सबसे पहले तो वकला के खिलाफ दहशतगर्दी और पुलिस बर्बरियत की हम शदीद मजम्मत करते हैं, और वकास कालू साहब और ज़मीर जेडू साहब हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के, उनके खिलाफ, और इसके अलावा मानूर बाजवा हमारी बहन के साथ जिस तरह उन्होंने बालों से पकड़कर घसीटा गया गुजरांवाला पुलिस ने, और इसी तरह गुजरांवाला पुलिस ने हमारे दो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान माहिल रजा आबदी और मदील रजा आबदी के घर में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके पूरी तरह तोड़ फोड़ की, उनकी सारी बिलोंगिंग्स को लेकर गए, उसकी भी हम पर जोर मजम्मत करते हैं। और इस तरह के मुस्तकबिल में इस तरह के हर वाक़े जिसमें पुलिस ने स्पेसिफिकली एक पूरी प्लानिंग के साथ वकला को जिस तरह वो लेट डाउन कर रहे हैं, उनको इंसर्ट कर रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और इस हाउस से हम ये रिजॉल्व करते हैं, अगर इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में जारी रहे तो हम अपने हम किसी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हम पुरअमन अपना लाएअमल देंगे। और सबसे पहले जो हम करेंगे, हम अपनी तमाम लोअर जुडिशरी और आला जो अदली है उसमें इंशाल्लाह हम अपनी बार एसोसिएशंस इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि जो अहाता है अदालतें हैं उनमें हर किस्म के पुलिस जो एहलकार है उनकी पाबंदी मुकम्मल उन पर आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और जब तक इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हमारी ये पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा हम आईजी पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि ये काना थाने में जो वाक़या पेश आया हमारे भाइयों के साथ, उस पर एएसपी मुआज़ खान और बाकी तमाम मुलव्विस जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू करवा कर उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया जाए, सिर्फ फर्जी कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम के जो है उस सिलसिले में हमारा पहले भी ये हाउस रिजॉल्व कर चुका है, आज हम ये दोबारा इसको ये रिजॉल्व करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट था वो 26वीं आईनी तरमीम के से मुतल्लिक जितनी पिटीशंस हैं, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की जो पिटीशंस हैं उनको फिल फोर फिक्स करके उन पर समाअत करें, उस पर जो वर्डिक्ट दें, और उसके बाद फिर जो भी मामलात हैं उनको आगे चलाया जाए। ना उससे पहले ये एलिगेशंस होनी चाहिए, ना उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के जितने शिके हैं उन पर जो अमल दरामद है वो रोक कर पहले उस पर वर्डिक्ट आना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। इसके अलावा जिस तरह हमारे भाई यहाँ पर इन्होंने तजवीज़ पेश की कि हम इंशाल्लाह ये हाउस ये भी रिजॉल्व करते हैं कि इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो हमारी तहरीक है उसको भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और इस सिलसिला में हम सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करेंगे इंशाल्लाह, उनका हम यहाँ पर कन्वेंशन बुलाएंगे। इसके अलावा हम जो है वो जिस तरह आमिर जलील सदीकी साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि हम इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सारी सियासी
जो जमातें हैं उन पर मुश्तमिल हम कौमी कॉन्फ्रेंस यहाँ हाई कोर्ट के फोरम से करवाएंगे और उनको 26वीं आईनी तरमीम के मनफी असरात जो हमारी आला अदलिया पर और निज़ाम इंसाफ पर मुरतब हो रहे हैं उनसे उनको बावर करवाएंगे। इसके अलावा हम जिस तरह मुबशर ने कहा कि हर जुमेरात को उन्होंने रैली का जो है वो ऐलान किया हुआ है, हम भी इस हाउस में ये आज फैसला करते हैं कि इंशाल्लाह हम हर जुमेरात को जनरल हाउस मुनक्किद करेंगे। किसी वजह से रह जाए कोई और मसला हो तो उसकी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सदर साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार जिंदाबाद। इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार इन तमाम नेशनल इश्यूज हमारे बार के इश्यूज में बिल्कुल मुत्तहिद हैं। हम हर जुमेरात को हाउस करेंगे, चाहे हमारे अलग-अलग सेशंस हो या हमारा जॉइंट सेशन हो। हम अपने हाउस करने के बाद रैली निकालेंगे, रैली हमारी इंशाल्लाह इकट्ठी होगी, या आप वहां से आएंगे, हम आपको यहाँ ज्वाइन करेंगे या हम इकट्ठे निकलेंगे। हर जुमेरात को इंशाल्लाह हम रैली में आपका साथ देंगे और हम भरपूर तरीके से इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हमारी जो ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी है, मुनीर मलिक साहब की सरबराही में लास्ट वीक उन्होंने ये डिसाइड किया कि अप्रैल के तीसरे वीक में इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक भरपूर कन्वेंशन इंशाल्लाह करवाएंगे, मुनक्किद करेंगे। इस सिलसिला में हमारे होस्ट हमारे जो वाजिद गिलानी साहब हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के, और उसके अलावा एहसन लिल्ला साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इंशाल्लाह वो इसको होस्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इसमें शामिल होंगे और अपने सब जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम पूरी तरह इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा राना ज़िया साहब ने बात की। राना साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके ये दोनों भाई, आपके छोटे भाई आपकी सरबराही में ये कोई जजों की चापलूसी या उनकी टाउटी के लिए मुंतखब नहीं हुए। ये इस बार की आवाज है और जो भी होगा इस बार के जो फैसले हैं उसके मुताबिक चलेंगे। हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई चीफ जस्टिस साहिबा से, जब हमारी कैबिनेट ने उनसे मीटिंग की और उन्होंने हमारे जितने मुतालबात थे, जो जाहिर है हमारा कोई पर्सनल कोई मुतालबा नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, जो हमारे बाल के इश्यूज हैं, जो प्रोफेशनल वकला के इश्यूज हैं, हमने बड़ी सरासिल उनसे गुफ्तगू की, उनसे तमाम मुतालबात उनके सामने रखे। उन्होंने हमें पूरी तरह यकीन दहानी कराई, बल्कि कुछ फौरी तौर पर जो मंजूर करने वाले थे वो उन्होंने फौरी तौर पर भी एक्शन लिया। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में चूँकि थोड़ा काम डिफरेंट तरीके से होता है तो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद हमारे जो जितने भी हमारे मुतालबात थे, जो कि बिल्कुल हमारे वो एक डिस्क्रिमिनेशन ना होने के लिए थे, सब केसेस को बराबर जो है उसको ट्रीट करने के लिए थे, और बाकी हमारे जो लाहौर बार और बाकी बार्स जो हैं उनके जो मुतालबात हैं वो खुद आकर चीफ जस्टिस साहबा से मिलेंगे, उसका भी उन्होंने इंश्योर करवाया था कि इंशाल्लाह ईद के बाद वो फौरी तौर पर तमाम बार्स को टाइम भी देंगी और उनके सब मुतालबात को भी इंशाल्लाह पूरी तरह जायज़ मुतालबात को एड्रेस किया जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी चीफ जस्टिस साहबा इंशाल्लाह अपनी उस जो हमारे साथ कमिटमेंट है उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगी, लेकिन अगर उसमें ताखीर होती है तो इंशाल्लाह हम वो लाएअमल इख्तियार करेंगे जो ये हाउस तय करेगा। हमारा कोई फैसला हमारा जो है वो अलहदा से हमारा ज़ाती नहीं होगा, इनफरादी नहीं होगा, बल्कि ये हाउस जो भी रिजॉल्व करेगा हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। मैं आखिर में आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने सब में हमारे जॉइंट सेशन में आपने शिरकत की, हमें ऑनर बख्शी, हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी आप हमारे इस तरह की दावत पर आप भरपूर तरीके से इसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें जो है हमें ये मौका देगा कि हम अच्छे काम कर सके इस बार के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो जी। आपको बहुत मुबारक हो। अब नमाज ज़ोहर जवेद इकबाल ऑडिटोरियम में बाजमात अदा की जाएगी। हाउस इज अडजर्न। कराची शोधा हाल में बाजमात नमाज अदा की जाएगी 2 बजे।